तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई। जो तू देहें सो कहाँ स्वामी, मैं मूरख कहन न जाई। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धन्ना श्री महला नौवां। साधो एह जग परम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया। माया हाथ विकाना, साधो एह जग परम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया। माया हाथ विकाना। रहाओ मात पिता भाई सुत बनता, ताके रस लपटाना। जो बन तन प्रभुता के मद में, अहनिस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तास्यो मन न लगाना। जन नानक कोटन मैं किन्हूँ, गुरमुख होए पछाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तास्यो मन न लगाना। जन नानक कोटन मैं किन्हूँ, गुरमुख होए पछाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जागदी जोत सरवरे कायनात दे मालक, भगत वत्सल कृपा निधान जगत गुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पाक हजूरी दे विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, सतगुरु ने अपार कृपा की। गुरु उपदेश सुनन समझन का सुभाग समा प्राप्त होया है।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਅੰਕ 684 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਬੋਲ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਧੋ ਇਹ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜਿਆ, ਮਾਇਆ ਹਾਥ ਵਿਕਾਨਾ। ਆਓ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ, ਲੁਆਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਵਾਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਿਲੋਸਫਰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਨੇਰ ਪਸਾਰਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਮ ਰੋਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰ ਇਸਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਚ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਭਟਕਣਾ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਤਨ ਗਵਾ ਕੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੈ,
माया मोह हनेर पसारा, ओह रोवै दुख आपना, हस हस गावै सब परिवार। वो अपने दुख नूं रोंदा है, पर सारा परिवार हस हस के सोहले गाउंदा, एक दूजे नूं वधाइयां दिंदा भी घर दे विच तुहाडे संतान दा जन्म होया है, बच्चे दा जन्म होया, सारे वधाइयां दिंदे ने। उस दिनां तो ही असल दे विच इस बच्चे दी भटकना शुरू हो जाती, जिहड़ी गल अज गुरु तेग बहादुर महाराज साडी झोली च पा रहे हैं। की कह रहे ने? आखन लगे, साधो एह जग परम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ विकाना। साधो, साधो का अर्थ है हे संत जनों। साधु का अर्थ है साधना करन वाले मनुखो, जिहड़े बंदगी करते हैं, जिहड़े साधना करते हैं, जिहड़े परमात्मा की सिफत करते हैं, उन्होंने सतगुरु समझा रहे हैं। याद रखना, समझाया उन्होंने ही जा सकता जिहड़े कि गुरु कोल आके बहिंदे ने। जिहड़ा गुरु कोल आके बैठदा ही नहीं, गुरु के चरनां च आउंदा ही नहीं, उसनूं की समझाया जा सकता है? जिहड़ा सतगुरां दे कोल आउंदा है, महाराज दी गोद विच आके बहिंदा है, ते सतगुर उन्होंने आवाज़ मारदे ने, हे संत जनों सुनो। महाराज की सुना रहे हो? दसो। कहन लगे, यह जग परम भुलाना, यह जगत माया दी भटकना विच पै के कुराए पिया रहिंदा है। सानू सतगुर समझा रहे ने भी किते ऐसा ना होवे तुसी मेरे कोल आए हो, सत्संगत विच पहुंचे हो, जिमें जगत माया दे हथों कुराए पै के भटकना विच पिया रहिंदा है, किते तुसी भी अपने जीवन विच कुराए ना पै जाना। जगत तां कुराए पिया होया, संसार दा हर एक प्राणी सतगुर कहंदे कुराए पिया होया, पर तुसी मेरे कोल बैठे हो, मैं तुहानूं समझा देना चाहना। सतगुर आखन लगे, कहंदे ने यह जगत माया दी भटकना विच पै के कुराए पिया रहिंदा है। जिंदगी दे दो राह ने, एक कुराया, एक राह, एक कुराहा। दोने राह ते मनुख तुरदा है, पर याद रखना जदों कोई कुराह ते पैंदा है, कुराए राह ते पै जांदा है, उस वेले वो तुरदा है, पर वो कदी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पर जिहड़े राह ते तुरदे आ, सही राह ते तुरदा है, वो एक दिन अपनी मंजिल नूं हासिल कर लैंदा है। तुरदे दोने ने, कू राह वाला भी ते सूह राह वाला भी, दोनों तुर रहे हैं। पर जिहड़ा कुराहे ते पै गया वो गलत रस्ते ते तुरिया है, ते गलत रस्ते ते तुरन वाला अपनी मंजिल तो दूर चला जाता है। हमेशा यह गल याद रखना, जदों भी मंजिल तय करो, जतन करो कि इसनूं पुछ लईए भी इस मंजिल ते असीं तुरे हां, साडा मुकाम यह है, असीं इस मुकाम ते जाना है, ते सानूं सही रस्ता दसो। दुनियावी तौर तो बहुत सारे लोग होणगे जिहड़े तुहानूं सही रस्ता दस देणगे। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गूगल है, लोग पा के किते जाते ने, भावें कई बारी मैं वेख्या और कई बंदे दसदे भी ने भी गूगल भी कई बंदिਆਂ ਨੂੰ कुराए ते पा दिंदा है, भावें पहुंचा जरूर दिंदा है ते भटका दिंदा विचकार। कई बारी पहुंच तां बंदा जांदा है, पर कई बारी बहुत लंबे फेरां ते होके जांदा है। पर याद रखना, जिहड़ा धार्मिक दुनिया का राह है, जिहड़ी रूहानी गल गुरु साहब जी गल करते ने, उस राह दे विच ये माया सब तो बड़ी भटकना है, जिस दे विच मनुख पै जांदा है और कुराहे ते पै के जीवन दे असले तो दूर चला जाता है और उस विच ही मगन रहिंदा है। फिर कह रहे ने, राम नाम का सिमरन छोड़िया। जदों ये माया दी भटकना विच पै जांदा है, तो फिर परमात्मा नूं याद करना छड़ दिंदा है। ये फिर हर वेले उठदियां बहिंदियां माया नूं याद रखदा है, माया नूं चेते करदा है, क्योंकि मनुखी हालत इदां दी है। साहिब जी बाणी च लिखदे ने
कि इस मनुख नूं दातां प्यारियां लगदियां, दातार भुल जांदा है। दात प्यारी विसरिया दातारा। दातां प्यारियां लगन लग पैंदियां, जिहड़ा दातार है वो भुल जांदा है बंदे नूं। इस करके गुरुदेव पिता गुरु महाराज कहते एक गल जीवन च याद रखें, किते ऐसा ना होवे कि तू इस माया च एडा गलतान हो जावें ते जिस काम नूं करन वास्ते संसार आए, संसार दे विच आए, वो काम ना भुल जाए। वैसे तो मनुखी हालत ऐसी है, इस सारी दुनिया की हर एक चीज़ नूं अपनी समझ के उस दे नाल मोह पा लैंदा है, पर जो अपना है ना उसनूं पूरी जिंदगी बेगाना समझी जाता है। जिन्हों महाराज बाणी च लिखते हैं, सब कुछ अपना एक राम पराया। सब कुछ अपना बना लेंदा है, पर जिहड़ा रमिया होया राम है उसनूं पूरी जिंदगी पराया समझदा रहिंदा है। इस करके साहिब कहते राम नाम का सिमरन छोड़िया। जिन्हां ने सिमरन छड़ दिता ना परमात्मा दा, सच्ची जाणियो उन्हां नूं कुराहे पैण तो कोई रोक नहीं सकदा। सिमरन ही है, परमात्मा दी याद ही है, जिहड़ा कि सानू बार बार राह चेते कराउंदा है, अपने सही राह ते चलन वास्ते प्रेरणा करदा है। पर जिन्हां ने सिमरन ही छड़ दिता, प्रभु दी याद ही भुला दिती, सच जानना वो हमेशा ही कुराहे पए रहिंदे हन। असीं बाणी क्यों पढ़दे हैं, असीं क्यों गुरुद्वारे आउंदे हां? उसदा कारण यह है कि असीं घर जांदे हां, माया दे विच भुल जांदे हां अपने फर्जां नूं। जदों गुरु दर ते आउंदे ने प्राणी ते सतगुर उन्हां नूं याद कराउंदे ने भी तेरा इत्थे संसार च आउण दा कारण कोई होर है, तू माया विच जाके भुल गया सी ना। ये गल ते गुरु दा तां काम ही ये है, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर बड़ भागी पाया। असीं भुल जांदे हां, सुभाविक है, भुल जाना ये साडे खून दे विच है। जब सतगुर कहते ने किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण न विचारो कोई, माटी का क्या धोपे स्वामी मानस की गत। यही मनुख की गति यह है, इस मिट्टी के हालात ही ये ने, क्योंकि साडे नाल तां वरत रहा वरतारा जिहड़ा है ना। मां कहंदे माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दोरियो फिरत है। जब कछ पावत तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। कुछ प्राप्त कर लैंदा, हंकार करदा है, जो चला जाता है माया चली जाती है, रोना शुरू कर दिंदा है। ये मनुख दे शरीर दे नाल जुड़ियां गल्लां ने। इस करके सतगुर कहते ने माया दे विच पै के मनुख, क्योंकि माया इसनूं भटकना विच पा दिंदी है ते ये कुराहे पै जांदा है। कुराहे पिया मनुख नूं अपना राह चेते नहीं आउंदा। इस करके परमात्मा दा सिमरन छड्ड के सो कहंदे माया हाथ विकाना। ये माया दे हत्थ विच विकिया रहिंदा है, मनुख माया दे हत्थ विकिया रहिंदा है। आओ कि माया दे वट्टे आत्मिक जीवन गवा दिंदा है। आए तां सां इत्थे आत्मिक जीवन लैण वास्ते, आउण दा कारण तां सतगुर दसदे बाणी विच पही प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। रब नूं मिलन दी वारी सी, पर आत्मिक जीवन माया दे वट्टे विच गवा दिता, माया नूं सब कुछ समझ लिया। ये गल याद रखना, जीवन च माया बहुत कुछ है, इहदे विच कोई शक नहीं है। माया बहुत कुछ है, पर माया सब कुछ नहीं है। इस दे विच कोई डाउट नहीं कि माया बहुत कुछ है, पर सतगुर बाणी कहते माया सब कुछ नहीं है। जे माया सब कुछ होंदी तां माया दे हथों उसकी माया खरीदी जा सकती सी, पर माया धारी उस परमात्मा की माया नहीं खरीद पाते। माया धारी परमात्मा की माया, माया का अर्थ है कृपा। उस वाहिगुरु की कृपा इस माया के नाल नहीं खरीदी जा सकती। ताईं तां कबीर साहब ने जिक्र किया अपने अमृत बोलना राही, आखन लगे कहंदे ने वो अकाल पुरख वाहिगुरु जिहड़ा है ना, वो माया दे के नहीं मिलता। कंचन स्यो पाइए नहीं तोल, मंदे राम लिया है मोल। कंचन दे के नहीं मिलता, कंचन दे के उसकी कृपा नहीं मिलती।
ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਵਿਕਾਨਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਟੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਬਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਟੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਰਡ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੁੱਗਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ 2000 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦੇਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਲਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਮੰਨੂ ਵੜਦਾ ਸੀ ਦੂਨੇ ਚੋਨੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜਿਆ। ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਵੇ,
इतिहास कोई होर सुना जाए, असी आप किताब लैके कभी खोल के नहीं वेखते भी साडा इतिहास की कहता है। ठीक है कि धार्मिक स्थानों में प्रचार प्रसार चाहिए, पर सिख का अपना भी तो कोई फर्ज है ना। गुरबाणी नाल जदों तो असी टुटे हाँ, सानू पता नहीं किन्ने लोगों ने खरीदिया। जदों तक सिख गुरबाणी नाल जुड़िया सी, गुर इतिहास नाल जुड़िया सी, किसी की जरूरत नहीं सी कि उस सिख नूं खरीद लैंदा। नहीं सिख खरीदे जाते सन, सिख सब कुछ छड़ देंदे सन। तुसीं वेखो ना, 7 ते 9 साल की उम्रां सरन दी नीआं विच खलोण वाले, उन्होंने एडे लालच दिते गए, थानू नवाबियां दित्तियां जाणगियां, थानू सुंदर होरां दे डोले दिते जाणगे। उस वेले पर उन्होंने सारी चीज़ों के उत्ते काटा मार दिता, कह दिता नहीं ये सानू नहीं चाहिए, सानू सिक्खी चाहिए। चलो थानू सिक्खी चाहिए, उन्होंने ये भी कहा थानू छड़ देने आ, तुसी इथों छड्डण तो बाद तुसी की करोगे। साहिबजादे पता की कहते सन, वजीर खान तू सानू छड़ देगा, असी सिखां कोल जावांगे, सिखां नूं तैयार करांगे, तैयार करके जदों तक तुहाडा ये जुल्म खत्म नहीं हो जाता, असी जालम सरकार दे नाल लड़दे रहांगे, बार बार जन्मांगे, बार बार मरांगे, पर अपना ये धर्म नहीं छड्डांगे। सानू धर्म चेते किथे है। राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना, असी माया दे हथों बिक गए। ये साडी हालत है। चलो ये बहुत विस्तार का सबजैक्ट है, मैं अगे बढ़ा, कभी विचार करना सबजैक्ट ते घर विच बैठ के विचार करना कि सच्चियों असी माया दे हथ बिक जाते हैं, असी अपनी फोटो लगाण वास्ते बिक जाते हैं। कोई राजनीतिकार कहना फोटो खिंचा, मैं तेरा बोर्ड लाना, असी उत्थे ही बिक जाते हैं। बड़ी खुशी होती है, साडा बोर्ड लग्या होया देखो जी। अज एक बंदे ने मैनू कहा, देखो जो फलाने राजनीतिकार मेरा बोर्ड लग्या होया देखिया, तुसीं फोटो देखो मेरी। मैं कि देख बिकया होया बंदा, सिर्फ इतना करके वो आया होएगा, फोटो खिंच के इश्तिहार बना के ला दिता उसके घर दे अगे, बड़ा खुश हो रहा अपनी फोटो नूं वेख के, देख मैं जो कितना पॉपुलर हो गया दुनिया च। वो सिखा तू ते अपना मानसिक जीवन बेच खाया। कदी वो जमाना सी कि सिख नवाबियां नूं, नवाब कपूर वर्गे ना ठोकरा मार देंदे सन, नहीं चाहिए नवाबी लै जाओ। ते अज सिखां नवाबी की कितनी भुख है। ये भुख नहीं फोटो की, ये भी तो नवाबी का एक रूप है दूजा। असी समझांगे थोड़ी पर इन्हां गल्लां नूं, ये बरीकियां ने क्योंकि गुरमत दियां नहीं समझ पावांगे ये राजनीति लोगों दियां चालां, क्योंकि सानू तो नवाबियां चाहिए, सानू तो अपनी वाहवा चाहिए है। एक बेनती करा, जिथे सिख दे अंदर ये आ जाए ना लोग मेरी वाहवा करन, उत्थे वो सिख नहीं रह जाता, फिर उत्थे सिख नहीं रह जाता। सिख का जीवन तो इत्थों शुरू होता है कि अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार, लोकन की चतराई उपमा ते वैसंतर जार, कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। जिन्हें तन ही अपना गुरु अगे अर्पण कर दिता है, वो नहीं लोगों के चक्करां च पैंदा, क्योंकि उसनों समझ आ गई कि मेरे गुरु का उपदेश ये है। अगले वचन कीते मारने, मात पिता भाई सुत बनता। सतगुर आखन लगे, हे संत जनो, बंदा मां प्यो भरा पुत्र स्त्री ताकै रस लपटाना। भुला होया जगत इन्हां दे मोह विच फसिया रहिंदा है। अपने फर्ज निभाने ने, अपनियां ड्यूटियां निभाउणियां ने, पर सतगुर कहते इन्हां दे मोह विच ना फसिया रहा कर। देखो वो सिख सन जिन्हां ने बंद बंद कटा लए, जिन्हां ने अपने बच्चों भी चड़खियां ते चाड़ लिया, जिन्हां ने अपने बच्चों के टोटे टोटे करा ले। क्यों? क्योंकि उन्हां दा मोह नहीं सी। उन्होंने गल समझ आ गई सी कि आम जगत की हालत है, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखै विख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों
ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਤਾ ਕੈ ਰਸ ਲਪਟਾਨਾ। ਇਹ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈਂ ਅਹਨਿਸ ਰਹਿ ਦੀਵਾਨਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ, ਧਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਦਾ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਜਿयरा ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਆਜ ਕਾਲ ਉਠ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਲਚ लागे जन्म गवाया, ता दिन कछ न बसाएगा। धन जोबन का गर्भ न कीजै, माया जो कागज जो कल जाएगा। धन जवानी का इन्हां चीज़ां का हंकार ना कर, तू तो कागज दे वांग कल जाना। तेरी हस्ती की है? सतगुरु इत्थे समझा रहे ने, जोबन तन प्रभता कै मद में अहनिस रह दीवाना। मनुख जवानी दे नशे विच, धन दे नशे विच, संसार दी ताकत दे नशे विच, मद कहंदे ने नशे नूं, ये मनुख दीवाना होया फिरदा है। भाव कि दिन रात झल्ला होया रहिंदा है, पागल होया रहिंदा है, बावरा होया रहिंदा है। असीं तां उन्हां नूं पागल कहंदे आ ना, ਜਿਹੜੇ कि संसार ਦਾ गंद मंद इकट्ठा करते हैं, पाटे कपड़े इकट्ठे करते हैं, पाटियां चीज़ां नाल संबंध रखते हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं। गुस्ताखी माफ, गुरु की नज़र विच वो इतने झल्ले नहीं जितने झल्ले उन्हें जिहड़े संसार का ये कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं। उच्चारण करो सतनाम। उसने भी छड़ देना प्यारे, तुसी भी छड़ जाना। फिर समझदार केड़ा, वो भी चला, जगत भी चला, सतगुरु आख रहे ने। फिर अगले वचन कीते महाराज ने, दीन दयाल सदा दुख भंजन, तास्यो मन न लगाना। आखन लगे, हे संत जनो, जेड़ा परमात्मा दीना उत्ते दया करन वाला, जेड़ा सारे दुखों का नाश करन वाला दुख भंजन है, तास्यो मन न लगाना। जगत उस नाल अपना मन नहीं जोड़ता। वाहिगुरु नाल साडा मन नहीं लगता। गुस्ताखी माफ करना, 3 घंटे फिल्म वेखनी होवे, बंदा एक बारी भी आसे पासे नहीं हुंदा। चौकड़ा मार के जो बैठ जाता 3 घंटे बाद उड़ता है। इत्थे अद्धा घंटा बैठना चाहे तो 4 बारी पासे मारदा है। क्यों? क्योंकि मन तो लग ही नहीं रहा। गुरुद्वारे नहीं मन लगता बंदे दा, पर फिल्म देखण वास्ते जावे, टीवी वेख रहा होवे, कोई होर शो वेख रहा होवे, उत्थे बड़ा ध्यान नाल ते एकागर होकर देखदा है, अगदा नहीं, थकदा नहीं। पर जदों ये नाम जपण वास्ते बंदा, बहुतियां दी शिकायत है, गुस्ताखी माफ करना, जदों पाठ का गुटका लैके बड़ी नींद आनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि साडा मन नहीं जुड़िया होया पाठ दे विच। यही तो कारण है। जे मन जुड़ गया फिर तुहानू पाठ कदों हो गया पता भी नहीं चलना। फिर तुसीं कहोगे मन किवें जुड़े? मन जुड़ेगा अभ्यास नाल, मन जुड़ेगा विचार दे नाल। बाणी नूं विचारना शुरू कर दो, विचार विचार के पढ़ना शुरू कर दो। 38 पौड़ियां ने, 38 दिन में तुहाडा जपजी साहब के अर्थ हो जाएंगे। कि पौड़ी रोज़ विचारिया करो, और 38 दिन तुसी करके वेख लो। 39वें दिन मेरे को आके मैनू मिलना, तुसी ये नहीं कह सकते मेरा मन नहीं लग रहा। हुण जपजी साहब दे विच उच्चारण करो सतनाम, पर करना पैना। असी सब शॉर्टकट लभदे, सारियां चीज़ां असी शॉर्टकट लभदे भी कुछ करना ना पवे तो सब कुछ घर च आ जाए। नहीं, करके वेखो तुसी। 38 दिन एक पौड़ी रोज़ विचारो। जपजी साहब पूरा पाठ करो, पर जपजी साहब करन तो बाद एक पौड़ी दी विचार करो। अज पहली पौड़ी विचारो, कल नूं दूजी विचारो, परसों नूं तीजी विचारो। 38 दिनां बाद आके दास नूं मिल जाना।
फिर कहना भी हाँ हुण मेरा जपजी साहब करन नूं चित नहीं करता, करेगा। थोड़ा जपजी साहब च मन लगे, तुहानूं समझ आ गई लिखिया गया जपजी साहब च। अजे तो यही नहीं पता पैड़ी पौड़ी च की लिखिया होया। ये तो सिख यही कही जाता, सोचा सोचना हो भी जे सोची लगवार जो सोचते कि होता ही नहीं हमारा। तो कई सिख तो हिंदी बोलते आके भी जो हम सोचते होता ही नहीं है। हुण दसो असी जिहड़ी गल्लां च पए होए हां, जिहड़ा सिख अजे तक ये नहीं समझ पाया कि इस पंक्ति के अर्थ की ने ते वो अगे किवें वधे। अजे तो ऊड़ा एड़ा याद नहीं होया तो वह कहना मैं PhD करनी है। PhD बाद के काम ने, पहला भाई ऊड़ा एड़ा याद कर लीए, पहला ऊड़ा एड़ा याद कर लीए, पहला लिखना सिख लीए, पढ़ना सिख लीए, वो बाद दीयां गल्लां ने। ध्यान बाद का काम है, पहला इतना तो करना शुरू करो। ऊड़ा एड़ा ध्यान नहीं लगन देंदा, माफ़ करना मैनू। जो बच्चे को स्कूल भेजते ना वो रोंदा है, मैं नहीं सिखना ऊड़ा एड़ा, ABCD मैनू चंगी नहीं लगती। तुसीं अपने बच्चे को पाण जाओगे ना स्कूल, वो तुहाडी लत्त फड़ेगा, मैं नहीं इत्थे बहना। पर तुसीं जबरदस्ती छड्ड के आउंदे उत्थे, क्यों कि उन्होंने पता अज मन नहीं लग्या, अज रोएगा, कल रोएगा, 3-4 दिन बाद अपने आप ये इत्थे सैट हो जाएगा। ये ऊड़ा एड़ा भी सिख लाएगा, ABCD भी सिख लाएगा, सारिया चीज़ां सिख लाएगा। पर जे तुसीं पहले दिन ही उसके मोह में फस गए, नहीं मेरा पुत्र रोंदा है, मेरी धी रोंदी है, मैं नहीं स्कूल च पाना, वो कुछ भी नहीं बन सकता। पर तुसीं दिल पक्का करके उत्थे छड्ड के आउंदे पाठशाला दे विच, स्कूल दे अंदर, इत्थे छड्डण नूं तैयार नहीं सी। छड्डना तो इत्थे भी पैना अपने मन नूं। इत्थे मन पुत्र है, उत्थे साडा तन पुत्र है, इतना ही फर्क है ना जी। इस करके सतगुरु ने यह सिद्धांत बख्शिया, मारे कहन लगे तू की कर रहा है कि ये माया दे नाल मन नूं जोड़िया होया, परमात्मा नाल मन जोड़दा नहीं। ते जन नानक कोटन मैं किन्हूं गुरमुख होए पछाणा। सदगुरु कहंदे ने हे नानक आख, करोड़ां विच किसी बिरले मनुख ने गुरु दी शरण पै के परमात्मा नाल सांझ पाई है, परमात्मा नाल अपने मन नूं जोड़िया है, परमात्मा नूं पहचानिया है। असी रब नूं पहचानना है, वाहिगुरु नाल सांझ पानी है, पर गुरु दे सन्मुख होके पै सकदी है। इक्को ही तरीका साडे कोल, वो है गुरु दे सन्मुख होके, गुरु दी शरण पै के, और गुरु दे मुताबिक। ये नहीं पाठ मैं अपने मुताबिक कर लेना जी, बाणी मैं अपने मुताबिक पढ़ लेना, गुरु दे मुताबिक। इस करके प्यार वाले गुरसिखो, आपां गुरु दे मुताबिक होके काम करिए, गुरु दी शरण पै जाइए। क्योंकि इस गुरु की खूबी है, जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, पिछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का वसीठ। ये परमात्मा की दरगाह का विचोला है, थोड़ा साग करा देगा परमात्मा नाल। गुरु ग्रंथ साहब ये विचोला है थोड़ा, विचोले नूं ना छड्डिओ, विचोला थोड़ा सरमंद जोड़ देगा। बच्ची जदों जवान होंदी है ना, माँ प्यो विचोला लभदे है। सानू ते अकाल पुरख ने इस जीव आत्मा दे रूपी बच्ची दे मिलाप वास्ते गुरु रूप विचोला, शब्द रूप विचोला दे दिता है। हुण इस विचोले दे नाल जुड़िए। देखो साडे कोल भी दो चीज़ां ने, मत माता संतोख पिता। इस जीव आत्मा दे दो माता कौन है, मत ते संतोख रूपी पिता है। ये दोनों जेड़े ने मिल के विचोले कोल आण। मत गुरु ग्रंथ साहब कोल आवे, बड़ी डूंगी फिलासफी है गुरु ग्रंथ साहब जी की। संतोख रूपी पिता गुरु ग्रंथ साहब कोल आण, इस विचोले नूं कहण कि मैं जीव आत्मा दा परमात्मा दे नाल मिलाप चाहुंदा है, मेरे इस जीव आत्मा दा संजोग हो जाए, मेरी इस बच्ची नूं संजोग मिल जाए, सोना वर मिल जाए, परमात्मा रूपी वर। ते गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक तुरांगे ना, तो गुरु ग्रंथ साहब उस परमात्मा दे नाल साडी जीव आत्मा का मिलाप करा देंगे। जिस नाल सांझ पै गई ना, उस दिन कह सकांगे कि ये लोग सुखी है, पर लोग सवेले नानक हर को आपे मिले। इस करके भाई गुरसिखो, ये माया की भटकना विच ना पै के गुरु नाल जुड़ के, जिथे आपां माया कमाउणी है, धन कमाउणा है, नाल नाल अपने जीवन नूं सुचज्जा रखण वास्ते धर्म भी कमाओ, गुरु की बाणी भी कमाओ। इतनी को बेनतियां प्रवान। मेरियां भुलां मेरी झोली विच, गुरु के वचन हृदय च बसाना जी। फतेह दी सान करो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी।
ਗੁਰਪੁਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨੈ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਭੋਜਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ